So the next chapter, number 8, is reporting under internal audit. This is the most important activity of your internal audit. जो भी आपने काम किया है उसका जो सारांश है, this is the culmination of your works. So reporting under internal audit, what are the key concepts? Key concepts are internal audit report, internal audit checklist है, और कारो है, company auditors report order 2020. What are the learning objectives? Learning objectives are reporting under internal audit. Objectives of reporting under internal audit है. फिर important aspects of quality reporting है. Who are the users of internal audit report? Layout क्या है? Precautions क्या लेने चाहिए? Communication of outcomes है. Checklist of internal audit report है. Reporting under various clauses of the company's audit report order 2020, CARO 2020, right? So basically, the essential part of internal audit is dissemination of the results of your assignment and report the findings to the management, to those charged with governance. Standard on internal audit 4 है SIA 4, issued by the Internal Audit Standards Board of the ICAI, specifies that internal audit report should contain a clear written expression of significant observations, suggestions, recommendations based on the policies, risks, controls and transaction processing taken as a whole and management responses. मतलब not only your observations, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि रिपोर्ट का पहले एक ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट आप डिस्कस करोगे, जो भी इंटरनल ऑडिट के जो भी ऑडिटी डिपार्टमेंट है उनके जो हेड है उनके साथ पहले आप डिस्कस करोगे योर फाइंडिंग्स, द ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट यू विल डिस्कस विद देम, उनके जो भी रिस्पॉन्सेस है उनको आप अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करोगे, एंड देन यू विल हैव द फाइनल वर्जन ऑफ योर रिपोर्ट. The process of report flows from overall internal audit objectives as specified in the appointment letter. आपका जो रिपोर्ट है वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से होना चाहिए. अपॉइंटमेंट लेटर में आपको स्कोप ऑफ वर्क दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका रिपोर्ट होना चाहिए. अभी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग? सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग आर बेसिकली आपकी जो फाइंडिंग्स है वो आप बताओगे, मैनेज ओके, अलाउ द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर कन्वेइंग. इट हैज़ टू लीड टू इम्प्रूवमेंट. द फॉलो अप प्रोसेस मॉनिटर्स द प्रोग्रेस ऑफ योर रिकमेंडेशन. आपने जो भी रिकमेंडेशन दिया है और जो उन्होंने लागू किया है उसका जो प्रोग्रेस है उसको भी आपको मॉनिटर करना है. The overall objective of reporting results is to highlight the effectiveness of internal controls and risk management processes to enhance governance in line with the internal audit charter. Abhi, importance of quality reporting. So basically, qualitative internal audit report can further support governance. Basically, ये जो report आप देते हैं उसका what is the fundamental reason why you carry out these processes. Basically it is for, अगर आपके कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो उनका बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये देखना कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है विद इन द कंपनी वो ठीक से चल रहे हैं या नहीं. तो आपका जो रिपोर्ट होगा वो उसी को स्ट्रेंथन करेगा. So qualitative internal control can further support the governance role of the audit committee by creating a better link between the role of the internal audit and responsibilities of the audit committee. Basically, it's the responsibility of the audit committee within the company to see to it that there are proper internal controls, they are functioning properly. आपका risk management, risk assessment जो process है वो ठीक से काम कर रहा है, ये सारा उनका जिम्मेदारी है. लेकिन आप जो एक इंटरनल ऑडिट प्रॉपरली कैरी आउट करके आपका रिपोर्ट एक अच्छा गुड क्वालिटी रिपोर्ट देते हो तो इन ऑडिट कमेटी का जो ये जिम्मेदारी है टू फुलफिल आपका जो रिपोर्ट है वो उसको फुलफिल करने में उनकी मदद करेगा. यूजर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट कौन कौन है? ये दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, of course audit committee is a part of the board of directors only. So audit committee, board of directors will consume the report. Then senior management है, business management and process owners है, फिर personal और employees tasked with direct implementation. जो जिन बंदों को आपने डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पे लगाया है, मतलब आपने जो भी रिकमेंडेशन दिया है मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट करके उसको लागू किया है, तो जो लोग एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी आपका ऑडिट रिपोर्ट बहुत अहमियत रखेगा. एक्सटर्नल ऑडिटर्स है, मतलब जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है उनके लिए भी आपका रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अदर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स लाइक रेगुलेटर्स. तो ये सारे जो है ये दीज आर द कंज्यूमर्स और द ऑडियंस टू योर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट.
उसके बाद व्हाट इज द लेआउट, लेआउट ऑफ द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। बेसिकली टाइटल आएगा, एड्रेसी किन को एड्रेस किया है। जनरली आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका स्कोप ऑफ वर्क क्या है और आपका रिपोर्ट किसको एड्रेस होना चाहिए। वो एड्रेसी का नाम और नाम और डिटेल्स यहाँ पर आएंगे। पीरियड ऑफ कवरेज ऑफ द रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने क्या कौन से पीरियड का ऑडिट किया है, वेदर इट्स अ ईयर, इट इज लेस देन अ ईयर और वेदर इट इज मोर देन अ ईयर। जो भी आपका पीरियड है वो आएगा। रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, किन किन को आपने रिपोर्ट भेजा है। ओपनिंग और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, आइडेंटिफाइंग द प्रोसेसेस, एग्जैक्टली कौन से प्रोसेसेस या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ऑडिट किए हैं, वो उसका लिस्ट आएगा। स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटिटीज मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। ये भी हमने पहले के चैप्टर्स में देखा है कि एक्चुअली जो इंटरनल कंट्रोल्स को डिज़ाइन करना है, उनको बिठाना है, ये सारी एक्टिविटी जो है ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्टर्स की। इंटरनल ऑडिटर यानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए हैं और वो इफेक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं। ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी, लगाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। तो ये जो क्लैरिटी है ये एग्जैक्टली एक पैराग्राफ में आपके रिपोर्ट में आएगी, ओपनिंग पैराग्राफ में ही आती है। देन ऑब्जेक्टिव स्कोप पैराग्राफ, इन जनरल आपकी जो इंटरनल ऑडिट के ऑब्जेक्टिव है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स है वो आएंगे। उसके बाद एंगेजमेंट बैकग्राउंड एंड मेथोडोलॉजी, उसके बाद पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग टेक्निक। जनरली इंटरनल ऑडिट जो है वो सैम्पलिंग बेसिस पे होता है, तो आपका आपने जो भी सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया है उसके बारे में आप जानकारी देंगे। फिर उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव समरी, आपके जो भी की मटेरियल इश्यूज है, जो भी आपके ऑब्जर्वेशन है उसका जो एक एग्जीक्यूटिव समरी बना के आप दोगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन फाइंडिंग्स डिटेल में आएगा। देन यू हैव कमेंट्स फ्रॉम द लोकल मैनेजमेंट, आपने जो ड्राफ्ट डिस्कस किया उसके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सेज आए ऑडिटी डिपार्टमेंट के, उनको आपने ठीक तरह से डिस्क्राइब करके इसमें इंक्लूड करना है। एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर बोलते हैं। एक्शन टेकन रिपोर्ट इज पर्सनल टू ऑब्जर्वेशंस मेड इन द प्रीवियस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। जो भी प्रीवियस इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स होंगे, उनके जो ऑब्जर्वेशंस है जो उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हैं, उनके ऊपर मतलब वॉट एवर एक्शन हैज बीन टेकन एंड वॉट एवर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एक्शन टेकन, इसका जो संक्षिप्त का एक संक्षिप्त में जानकारी आपको यहाँ देनी पड़ेगी। तो इट विल इंश्योर कंटिन्यूटी। जैसे आप भी बिफोर यू स्टार्ट द ऑडिटिंग इंटरनल ऑडिट प्रोसेस, यू विल आल्सो रेफर टू द इनिशियल ऑडिट रिपोर्ट्स, बिकॉज यू विल नो व्हाट द इनिशियल पर्सन हैज ऑब्जर्व्ड एंड उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया, उससे कंटिन्यूटी आएगी, राइट। सो आप वहाँ जो इम्प्लीमेंट किया था उसके बारे में आप अपने रिपोर्ट में भी देंगे, ताकि जो रीडर्स है उनको एक कंटिन्यूटी बनी रहे। उसके बाद डेट ऑफ द रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर ये कंटेम्प्रेरी बनेगा एग्जैक्टली आपने कभी व्हाट पीरियड यू हैव ऑडिटेड एंड व्हाट डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। जो साइन सिग्नेचर का डेट रहता है जनरली दैट इज द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। प्लेस ऑफ सिग्नेचर एंड इंटरनल ऑडिटर सिग्नेचर विद मेंबरशिप नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप का जो मेंबरशिप नंबर है आपके इंस्टीट्यूट के साथ, वो भी मेंबरशिप नंबर आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनल ऑडिट शुड टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग व्हाइल ड्राफ्टिंग, इट हैज़ टू बी, हाउ डू यू ड्राफ्ट अ रिपोर्ट। इन जनरल जो फॉर्मल रिपोर्ट्स के लिए जो अप्लाई होता है उसमें से कई सारे प्रिंसिपल्स इसको भी अप्लाई होते हैं। जैसे वो क्लियर होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। क्लियर मतलब पढ़ने वाले को एग्जैक्टली समझ में आए कि आप बोलना क्या चाहते हो और उनके पास से क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, तो क्लियर होना चाहिए। फैक्चुअल होना चाहिए, आप जो भी बोल रहे हो ऑब्जर्वेशन उसके लिए जो बैकग्राउंड में इम्पॉर्टेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है या फिर आपके ऑब्जर्वेशन है उनको ठीक तरीके से आपने मेंशन करना चाहिए। कंसाइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। कंसाइज होना चाहिए जो रीडर को सही में समझ में आए। अनएम्बिगुअस होना चाहिए, कि एग्जैक्टली क्लियर एंड अनएम्बिगुअस मतलब उस जिससे एक ही मीनिंग निकलता हो, इट इज नॉट, you don't write in a language in which there will be more than one meaning, exactly एक मीनिंग निकले, ऐसा अनएम्बिगुअस रिपोर्ट होना चाहिए। टाइमली मिलना चाहिए, बहुत लेट देर से मिलेगा तो इन जनरल आपके ऑब्जर्वेशंस का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कंप्लाइज विद गैप इन इंडिया, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल से आपका जो रिपोर्ट है वो मैच करना चाहिए, अपने वो फॉलो करना चाहिए। सो बेसिकली इट हैज़ टू बी टाइमली। लेट रिपोर्ट देखिए इतना कुछ उसका जो भी उसका वॉट एवर यू मेंशन्ड ऑब्जर्वेशंस उसका शायद फ़ायदा ना हो। उसके बाद इट हैज़ टू कंप्लाई विद गैप, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन इंडिया, इससे भी वो एडहियर करना चाहिए, राइट।
Now title, we'll briefly look at the parts of the report. Title has to be appropriate and it has to express exactly आपने क्या audit किया है और आपकी क्या observations है. Addressee of the report, internal auditor's report is addressed to the appointing authority or such other person as directed. आइडियली ये मेंशन होगा आपके अपॉइंटमेंट लेटर में. स्कोप पैराग्राफ, स्कोप में इंटरनल ऑडिट्स एबिलिटी टू परफॉर्म इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स डीम्ड नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस. अगर स्कोप में कुछ लिमिटेशन है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा. उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ स्कोप. वेदर देयर इज एनी लिमिटेशन ऑफ स्कोप ऑन द इंटरनल ऑडिटर्स वर्क, द इंटरनल ऑडिटर शुड डिस्क्राइब द लिमिटेशन. एग्जीक्यूटिव समरी पैराग्राफ जो है वो क्लियरली इंडिकेट द हाइलाइट्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट फाइंडिंग्स, key issues and observations of the concern, significant controls, lapses, failures of weakness in the systems or processes. ये जो है executive summary is something very important that a person when he reads once he will actually understand your entire report. उसके बाद जो आपके पैराग्राफ्स होंगे वो हर एक पॉइंट को एलाबरेट करेंगे. सो ऑब्जर्वेशन, मेन रिपोर्ट पैराग्राफ, हर एक फाइंडिंग जो है वो आप अलग अलग लिख के उसकी उससे जो सपोर्टिंग फाइंडिंग्स है या फिर सपोर्टिंग जो फैक्ट्स है वो आप उसके हर एक पैराग्राफ में लिखोगे. कमेंट्स फ्रॉम लोकल मैनेजमेंट, आपका ड्राफ्ट रिपोर्ट आप जब भेजोगे तब उनके रिमार्क्स आएंगे. वो रिमार्क्स जो है वो एग्जैक्टली आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं. सो उसमें इफ दे हैव टेकन एक्शन ऑन समथिंग देन यू नीड टू मेंशन कि अप्रोप्रिएट एक्शन उन्होंने क्या लिया था, कभी लिया था, पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके बाद रिसोर्स रिक्वायरमेंट अगर कुछ है तो वो भी यहाँ पर मेंशन होगा. एक्शन टेकन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या होता है, जो प्रीवियस जो रिपोर्ट्स गए हैं इंटरनल ऑडिट के और जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है. वेदर दे हैव एग्रीड, if the department has agreed to implement those recommendations, then what action has been taken, whether it's complete, not complete, if it is not complete, till when is it expected to be completed, right? So action taken report paragraph should append other observations. So compliance corrective action क्या already लिया गया है, अगर नहीं लिया गया है तो क्यों नहीं लिया गया, और revised timelines for compliance, अगर कोई revision है timelines में, because similar thing तुम्हारे last report में भी होगा, अगर कोई revision है timelines में तो वो भी mention करना पड़ेगा. नाउ डेट ऑन विच दी, डेट का अहमियत क्या है, एग्जैक्टली कहाँ आपको कंटेम्प्रेरीनेस पता चलता है कि एग्जैक्टली कभी का रिपोर्ट है ये. ऑफकोर्स यू विल ऑल्सो मेंशन कि आप पीरियड ऑफ द ऑडिट इज एग्जैक्टली विच पीरियड यू आर चेकिंग एंड द डेट ऑफ द रिपोर्ट इज एक्चुअली जब रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो. सो डेट ऑन विच द इंटरनल ऑडिटर साइंस द रिपोर्ट इज एक्चुअली द डेट ऑफ द रिपोर्ट. प्लेस ऑफ सिग्नेचर, स्पेसिफिक लोकेशन विद इन द सिटी ये मेंशन करना है. इंटरनल ऑडिटर सिग्नेचर यू हैव टू साइन इन पर्सनल नेम और आपके नेम के नीचे आपको आपके मेंबरशिप नंबर भी लिखना है. सो इफ यू आर अ मेंबर ऑफ से द ICAI यू विल एक्चुअली मेंशन योर मेंबरशिप नंबर विद द ICAI. अभी आता है, ये स्टेप्स हमने पहले भी डिस्कस किए थे. कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट कैसे होता है. बेसिकली पहले आपका ड्राफ्ट रिपोर्ट बनेगा. वन स्टेप बिफोर दैट, कम्युनिकेशन जो है ना ये हैज़ टू बी थ्रू आउट दी असाइनमेंट. ऐसा नहीं है कि आप बैठोगे असाइनमेंट कंप्लीट करोगे एंड में कम्युनिकेट करोगे, ऐसे नहीं होता. Ideally, at every stage, you should maintain a very close communication with the auditing department. That is how your work and your report will be more useful to the auditing company. सो आप कांस्टेंट कम्युनिकेशन रखिएगा, प्रॉपर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों. उसके बाद आप ड्राफ्ट वर्जन बनाओगे, आपका जो भी रिपोर्ट है उसका ड्राफ्ट वर्जन बना के आप उनसे डिस्कस करोगे, राइट. सो एग्जिट मीटिंग होता है इन विच द इंटरनल ऑडिटर शुड डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी रिगार्डिंग फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस, रिकमेंडेशन एंड टेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ड्राफ्ट. डिस्कशन ड्राफ्ट जिस मीटिंग में आप डिस्कस करोगे जनरली उसको इन्होंने एग्जिट मीटिंग कहा है. उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशंस उनके आएंगे उनको सही टाइम दीजिए. इट्स नॉट दैट आप सामने सामने बैठ के आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. एट टाइम्स जो भी अवेलेबल है सामने सामने दे देते हैं, लेकिन ऐसे हो सकता है कि दे विल रिक्वेस्ट फॉर सम टाइम टू काइंड ऑफ गो थ्रू योर रिपोर्ट एंड गिव देयर remarks, give their remarks or give their side of the story to you. So उनको इनफ टाइम दीजिए. वो आने के बाद उनके जो भी रिमार्क्स है वो उसको आपको आपके ड्राफ्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके बाद आपका फाइनल ड्राफ्ट बनेगा. So formal draft, when the changes have been reviewed by the internal auditor and entity management, the final draft should be issued. ये फाइनल रिपोर्ट जो है ये आप एक्चुअली सबमिट करोगे. इंटरनल ऑडिटर शुड सबमिट द फाइनल ड्राफ्ट टू बी
फाइनल रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और सच मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट। जो भी आपको आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा गया है जिनको देना है उस हिसाब से आप सबमिट करोगे। नाउ द नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या क्या आइटम है। चेकलिस्ट क्या होता है? जनरली चेकलिस्ट इज मेड टू you know to guide you of what exactly should be included in the particular document. So इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का चेकलिस्ट आपको बताएगा कि आपको क्या आइटम्स इंक्लूड करने हैं। तो पहले एग्जीक्यूटिव समरी हुआ, फिर स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उसके बाद पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव एंड ऑब्जेक्टिव है या नहीं। जो आपको आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो एक्चुअली उसकी जो लैंग्वेज है वो न्यूट्रल होनी चाहिए, अफर्मेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। इजीली अंडरस्टैंडेबल, डोंट यूज कॉम्प्लिकेटेड जार्गन जो सामने वाले को समझ में में ना आए। सो बेसिकली यू रिमेंबर वन थिंग दैट इफ सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ना तो आपका रिपोर्ट का कुछ वैल्यू नहीं है या फिर आपके रिपोर्ट का कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज अगर सामने वाले को समझ में नहीं आएगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ensure that your language is lucid, simple, clear, unambiguous, राइट। उसके बाद टोन जो है न्यूट्रल होना चाहिए, अटैकिंग टोन नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे मतलब आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, और डायरेक्टली किसी पे अगर आप रिमार्क कर रहे हो तो वो एक्चुअली इट इज़ नॉट इन गुड टेस्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। सो न्यूट्रल टोन रखिए, कहना है वो कहिए आप, लेकिन एक न्यूट्रल टोन में कहिएगा। एडिक्वेट नंबर ऑफ नंबरिंग सिस्टम। एडिक्वेट नंबरिंग सिस्टम का मतलब है कि जो फ्लो है वो मेंटेन करने के लिए नंबरिंग सिस्टम जो है, इंडेंट अगर है मतलब पॉइंट 1 2 3 4 है और 1 में अगर ABC है तो वो जो इंडेंटिंग सिस्टम है उसको ठीक से रिव्यू कीजिएगा। मेनी अ टाइम्स व्हाट people do is pick up the last report and then draft the current report, which is a good thing because you maintain maintain continuity. But when you do that, please see to it that you don't break the continuity in the entire process, है ना। जो नहीं है, जो अप्लीकेबल नहीं है उसको हटा दीजिए, जो नए चीज़ें हैं उसको इंक्लूड कीजिए। नंबरिंग सिस्टम ठीक रखोगे तो प्रॉपर फ्लो मेंटेन होगा। उसके बाद पैराग्राफ्स सही होने चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई इफ यू आर नीड टू प्रेजेंट इट इन अ ग्राफिकल मैनर, वो इवन दैट यू विल टेक केयर ऑफ। अगर लोगोज ऑफ क्लाइंट्स आप यूज़ कर रहे हैं तो एडिक्वेट रिटन परमिशन आपके पास होनी चाहिए रिपोर्ट में यूज़ करने के लिए। उसके बाद स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, फॉन्ट का साइज जो है वो जो फॉन्ट है उसको स्टैंडर्ड रखिए, एरियल 12 और वट एवर इज एक्सेप्टेबल एज पर योर योर एग्रीमेंट विद द क्लाइंट। फॉर्मल एक ये रखिए, ज़्यादा चेंज मत कीजिए। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ रिस्क लेवल्स जो है उसको मेंशन कीजिए। मतलब अगर कोई हाई रिस्क है तो उसको मेंशन करना ज़रूरी है कि वो हाई रिस्क है, ताकि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको आइडेंटिफाई होगा कि उसको पहले क्या इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद इंश्योर दैट ऑडिट रिपोर्ट adheres to the standards of internal audit issued by the ICAI। ये हमने ऑलरेडी बात की थी कि आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब ऑडिट करते हो तब एक बहुत अच्छा ऑडिट उभर कर आएगा, बिकॉज द स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंट्रिकेट, वेरी डिटेल्ड। तो आप अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से काम करोगे तो एक प्रोफेशनलिज्म भी आता है और आपका जो ड्यू डिलिजेंस ड्यू प्रोफेशनल केयर जो हम बोलते हैं वो भी आपका हो जाएगा, बिकॉज यू आर एनीवेज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स दैट आर सेट फॉर द पर्पज, राइट। उसके बाद एक एग्जाम्पल है, देख लेना। उसके बाद वी विल गो टू कारो विच इज कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020। तो बेसिकली कारो का एक टाइमलाइन रहा है। पहली बार वो इशू हुआ 1988 में, फिर 2003 में रिवाइज हुआ, उसके बाद 2016 में रिवाइज हुआ, और अभी जो चल रहा है वो कारो 2020 है। हर एक रिविजन के पीछे कोई ना कोई अहम कारण था और कोई ना कोई क्लॉजेस जो कंटेम्प्रेरी है, जो अप्लीकेबल है करंट सिनारियो में, उनको इंक्लूड करते चले गए। सो द लेटेस्ट कारो इज 2020। सो बेसिकली कारो क्या है? सो हम जब ऑडिट करते हैं, जो रिपोर्ट हम बनाते हैं, सो कारो इज बेसिकली द फॉर्मेट ऑफ दैट रिपोर्ट। ओके, जो इंटरनल ऑडिट आप कर रहे हो उसका जो फॉर्मेट दिया गया है वो कारो में दिया गया है। फॉर्मेट एक जैसा होने का व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट यू हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर फॉर्मेट स्टैंडर्ड ना हो तो फिर हर एक कोई अपने हिसाब से फॉर्मेट्स बनाएंगे, राइट। एंड देन बेसिकली ऐसे हो सकता है कि रेगुलेटर के दिमाग में जो है, या रेगुलेटर जो चाहते हैं कि आप रिपोर्ट में मेंशन करें वो आप करेंगे या फिर नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मेट। सो यू विल अप्लाई योर ओन फॉर्मेट और एवरीबडी एल्स विल ऑल्सो अप्लाई देयर ओन फॉर्मेट्स।
So then, first of all, the implication of the regulator is not satisfied. उनको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा. Second is it is not comparable. If year one there is auditor A, he will have his own format. Year two there is auditor B, he will have his own format. There will be no continuity, right? लेकिन when you have a standard format, everybody works to fill in that exact format only. So उस हिसाब से फिर स्टैंडर्डाइजेशन होता है. जो रेगुलेटर को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारा आपके रिपोर्ट में आ जाएगा. जो भी क्लॉजेस उनको चाहिए वो डाल देंगे ठीक तरीके से. जहाँ नॉट अप्लीकेबल है नॉट अप्लीकेबल लिखा जाएगा. जहाँ अप्लीकेबल है और जहाँ पे रीजनिंग या फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारा आ जाएगा. दैट इज द रीजन वाई यू हैव फॉर्मेट्स फॉर एनी पर्टिकुलर रिपोर्ट. अभी कारो जो है लेटेस्ट 2020 के लिए है. एप्लीकेबिलिटी कब से हुई? कमेंसिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 से कारो 2020 एप्लीकेबल हो गया है. ओके, किन को लागू नहीं होता है? सो कारो इज बेसिकली अकॉर्डिंगली कारो 2020 विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज एक्सेप्ट द फॉलोइंग. एक्सेप्शंस कौन कौन से? बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेक्शन 8 कंपनी, OPCA 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, and a private company, ये important है, a private company not being a holding or a subsidiary company of a public company, having a paid up share capital and reserves and surplus not more than 1 crore as on the balance sheet date, and which does not have total borrowings exceeding 1 crore from any bank or financial institution at any time during the financial year, and which does not have a total revenue as disclosed in Schedule 3 to the Act, including revenue from discontinuing operations exceeding 10 crores. ये सारे limits उन्होंने दिए हुए हैं during the financial year as per the financial statements. This order stated that every report of the order under section 143 of the Companies Act must contain matters stated in 21 clauses as specified in paragraph 3, and accord reasons for unfavorable or qualified answer as stated in paragraph 4 of the CAR. So basically 21 क्लॉज है. 21 क्लॉज में बेसिकली ये रिपोर्ट में क्या है, 21 ऐसी चीज़ें दी गई है जो इम्पॉर्टेंट है और जिसको ऑडिटर ने चेक करना चाहिए. तो आइडियली इट इज़ इनफॉर्मली इट्स अ चेकलिस्ट कि ये 21, अगर आपको रिपोर्ट लिखना है तो वो 21 चीज़ें आपने चेक करनी चाहिए. और हर एक क्लॉज में सब आइटम्स है. तो एग्जैक्टली क्या चेक करना चाहिए ये आपको कारो से ही पता चलता है, राइट. आपका चेकलिस्ट जो है, ऑडिट चेकलिस्ट जो है वो आप इस हिसाब से बना सकते हो. सो क्लॉज नंबर 1 इज अबाउट प्लांट एंड प्रॉपर्टी, वेदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स आर मेंटेन, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं. अगर टाइटल डीड, अगर मतलब जो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी है वो अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जिनकी the title deeds are not in the name of the company. अगेन रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर हुआ है और अगर रिवैल्यूएशन का डिफरेंस 10% से ज़्यादा है तो उसके डिटेल्स भी आएंगे. उसके बाद बेनामी प्रॉपर्टी में के अगर अंतर्गत अगर कुछ कंपनी पे देयर हैज़ बीन any proceeding against the company under Benami property, then that details of that also have to be mentioned. Next clause is about plant and इन्वेंटरी एंड वर्किंग कैपिटल. सो अगर आपका इन्वेंटरी जो है, next clause is on inventory and working capital. So whether physical verification of inventory has been carried out, whether discrepancies are there. अगर 10% से ज़्यादा उन्होंने ये benchmark दिया हुआ है, तो 10% से कम है तो it is fine, just mention that there is a discrepancy. But 10% से ज़्यादा है तो उसके details आपको देने पड़ेंगे जैसे इन्होंने यहाँ पर मांगे हैं. Whether any point of time working capital limits in excess of 5 crores, 5 crores से ज़्यादा अगर आपने working capital limits ले रखे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि जो क्वार्टरली रिटर्न स्टेटमेंट आप बैंक को दे रहे हो वो एग्जैक्टली आपके बुक के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं. तो आपको वो भी चेक करना पड़ेगा. उसके बाद है डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस. ये थोड़ा सा बड़ा क्लॉज है. सो बेसिकली आपने आप जब आपकी कंपनी जब लोन्स एंड एडवांसेस मतलब दे रही है तो आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, किन को दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, राइट. वेदर रिपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से रिपेमेंट हो रहा है या नहीं. अगर रिकवरी नहीं हो रही है तो क्या स्टेप्स लिए गए हैं, कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा है या नहीं. और जो बेसिकली जो लोन्स आपने आपके सब्सिडरी में दिए हैं, सब्सिडरी जॉइंट और होल्डिंग कंपनी को दिए गए हैं, तो उसके सारे डिटेल्स यहाँ पर आएंगे. हर एक क्लॉज में अलग अलग डिटेल्स उन्होंने मांगे हैं. जो ओवरड्यूज है उनकी भी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी. जो 90 डेज एंड अबव है या उसका अलग से आपको डिटेल देना पड़ेगा. सो उसके बाद अगर लोन्स एंड एडवांसेस जो हम इनफॉर्मली सर्कुलर लोन्स बोलते हैं या फिर
कैरी फॉरवर्ड लोन्स बोलते हैं, जैसे एक लोन को क्लोज करने के लिए और एक लोन दिया गया, उसको क्लोज करके और एक लोन दिया गया, इफ दैट इज हैपनिंग देन ऑल्सो दोज डिटेल्स हैव टू बी मेंशन। उसके बाद रीपेबल ऑन डिमांड, ऐसे कोई लोन्स है क्या, अगर है तो स्पेसिफाइड टर्म्स क्या है रिपेमेंट की, वो भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद है compliance with provisions of section 185 and 186 loans and advances। 185 deals with loans to directors and 186 deals with in general loans to other persons। ये जो है इन ये sections के हिसाब से अगर आपने आपकी कंपनी ने कुछ लोन्स दिए गए हैं तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे। डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट्स है सेक्शन 73 टू 76 का कंप्लायंस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद कॉस्ट रिकॉर्ड्स है सेक्शन 148 के जो रिक्वायरमेंट्स है वो फॉलो हो रही है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी ड्यूज अगर पेंडिंग है तो एक्सटेंट ऑफ एरियाज ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंसर्न फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ। 6 महीने से ज़्यादा अगर सरकारी पैसा आप रख रहे हो तो उसके डिटेल्स आपको देने पड़ेंगे। और अगर कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट आपने डिपॉजिट अगर कोई दे रखा है तो वो भी यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर ऑफ अनरिकॉर्डेड इनकम, अगर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अनडिस्क्लोज इनकम का कुछ आपके कंपनी में है तो आपको वो देना पड़ेगा। वेदर एनी ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, if so whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books or not, मतलब जो unrecorded था उसको आपने रिकॉर्ड किया है या नहीं। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ रीपेमेंट, बेसिकली डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। विलफुल डिफॉल्टर का अगर टैग आपको लगा है, कोई भी बैंक ने आपको विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है तो वो उसके डिटेल्स भी यहाँ देने पड़ेंगे। अगर आपने लोन्स डाइवर्ट किए हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए आपने लोन लिया था उस चीज़ के लिए यूज़ ना करके अगर आपने कोई और चीज़ के लिए यूज़ कर दिया हो तो उसके डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे। ऑब्लिगेशन ऑफ इट सब्सिडरीज फुलफिल कर रहे हैं या नहीं वो भी बताना पड़ेगा। सब्सिडरीज एसोसिएट्स जॉइंट वेंचर्स, कंपनी हैज रेज्ड लोन्स ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन इट्स सब्सिडरीज, अगर आपने आपके जो सब्सिडरीज जॉइंट वेंचर या फिर एसोसिएट कंपनीज के सिक्योरिटीज प्लेज करके लोन लिया है तो उसकी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद है मनी रेज टू पब्लिक इशू और अदर्स, वट एवर यू हैव रेज्ड मनी for the purpose that you have raised money, आप उस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो या नहीं। whether the company has made any preferential allotment और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, सेक्शन 4262 में अगर आपने कुछ किया हो तो उसके डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड है, वेदर अगर आप ऑडिट करते समय आपने आइडेंटिफाई किया कि कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसका जो रिपोर्ट है वो आपको रूल 13 के हिसाब से देना पड़ता है ADT 4 में, वो अगर आपने किया होगा तो उसके डिटेल्स यहाँ पर आएंगे। कंप्लायंसेस बाय निधि कंपनी, बहुत स्पेसिफिक टाइप की कंपनीज होती है, उनके जो रूल्स है उस हिसाब से क्लॉजेस है यहाँ पर, उनका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। कंप्लायंसेस विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन 177 है जो ऑडिट कमेटी वाला सेक्शन है और 188 है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उस हिसाब से अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशंस हो तो इस क्लॉज में आएंगे। उसके बाद है रिपोर्ट अबाउट इंटरनल ऑडिट सिस्टम, इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट है या नहीं, आपका जो बिजनेस है उसके हिसाब से आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, पहले आपने बिठाया है कि नहीं, ये सारी जानकारी आपको ये क्लॉज में देनी पड़ेगी। फिर रिपोर्टिंग फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, अगर आपने कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया हो तो उसके डिटेल्स यहाँ आएंगे। प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट। उसके बाद कंप्लायंस विद RBI डायरेक्टिव्स, RBI ने जो भी डायरेक्टिव्स दिए हैं उस हिसाब से अगर आपको अप्लाई होते हैं तो उस हिसाब से जो 4 चीज़ें इन्होंने मंगाई है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी। वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 45(1)(a) ऑफ द RBI एक्ट एंड इफ सो वेदर रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्लाइड फॉर एंड ऑब्टेन्ड। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया है या नहीं, उसके बाद आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो तो उस हिसाब से आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे। Whether the group has more than one core investment company as a part of the group, if yes, indicate the number of CICs which are part of the group. ये डिटेल्स आपको यहाँ देनी पड़ेगी। कैश लॉसेस अगर हो तो उसके डिटेल्स देने पड़ेंगे। फिर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके ऑडिटर्स रिजाइन कर गए हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो है, तो आपको उसके डिटेल्स यहाँ पर देने पड़ेंगे। इकोनॉमिक वायबिलिटी के बारे में बताना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट टू द ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists on the date of the audit
रिपोर्ट दैट कंपनी इज केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटीज। अगर ऐसा कुछ है कि आपको डाउट है कंपनी अपनी लायबिलिटीज मीट नहीं कर पाएगा, ऐसा अगर आपको लगता है, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी क्लॉज में आपको वो बताना पड़ेगा। उसके बाद कंप्लायंसेस ऑफ CSR है। CSR रिलेटेड जो कंप्लायंसेस है वो आपके इन प्लेस है या नहीं। अगर CSR वाला क्लॉज आपको लगता है तो उस हिसाब से ये क्लॉज में आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे। अनफेवरेबल रिमार्क इन सब्सिडरी एसोसिएट स्टैंडअलोन कारो रिपोर्ट। अगर कोई एसोसिएट सब्सिडरी जो आपके आपकी कंपनी के साथ है, उनके कारों में अगर कोई अनफेवरेबल रिमार्क है तो उसके ऊपर आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे। So that were 21 clauses of the Caro, and that completes your chapter number 8. Thank you.